Hello everyone, welcome to the daily news analysis presented to you by LawSikho. So today we'll be analyzing the important articles for the date June 1st, 2020. So पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमारे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. So there are three articles that hold importance for the day. The first article is titled as SpaceX spacecraft successfully docks with ISS. So it is on the first page of the Hindu today. And the second article is titled as Land of the Unfree. So this is also an important editorial which we have in the Hindu on page number 6 today. And third and finally, we have this article, the editorial, which is titled as It's Time for a Universal Basic Income Program in India. So we'll be seeing all of these three articles in detail and how they are relevant from the judiciary point of view. So firstly, the first article is SpaceX aircraft docks with ISS. So सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये हमारी आज की हेडलाइन है, which is SpaceX aircraft docks with ISS, इसका जो हमारा कीवर्ड्स जो इसके हम हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉक्स अबाउट SpaceX. So SpaceX एक्चुअली क्या है? इट इज अ प्राइवेट कंपनी. So there are different kinds of companies. The two main जो diversions होते हैं इसमें जो दो main इसके types होते हैं वो private होते हैं या फिर public company होते हैं. So जो private company होती है it is owned privately by an individual or a group of small individuals. मतलब कुल मिला के उसकी जो ownership है वो private होती है. It is not in the public domain. लेकिन जो public companies होती हैं वो पब्लिक के लिए ही बनाई जाती हैं एंड मोस्टली इट इज सेड कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं. सो इसलिए कई कंपनीज के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है. सो इसी तरीके से जैसे इसका एग्जांपल अगर हम इंडिया में लेके चलें तो फॉर एग्जांपल रिलायंस जो हमारी है, सो रिलायंस फाउंडेशन इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज प्राइवेटली ओन्ड बाय अंबानीज. सो that is the difference between a private and a public company. And private company है which means कोई भी एक individual या एक group of individuals ही इसको hold करता होगा. So this is a private company in the field of aeronautics manufacturing and space transportation services. Now these words they appear to be quite daunting, but they actually are not. Let's just break them up and try to understand their essence. So first, aeronautics. So aeronautics simply is the science, it is the field that deals with the space. तो अगर हमारा जो स्पेस जिसको हम लोग कई लोग होते हैं जो सिर्फ सोलर सिस्टम को स्पेस समझते हैं, बट सोलर सिस्टम इज वन ऑफ द सिस्टम्स इन दी स्पेस. ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होंगे और वो जो है वो ऑल ऑफ देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी स्पेस. तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम एरोनॉटिक्स के फील्ड में काउंट करते हैं. सो एरोनॉटिक्स मैन्युफैक्चरिंग विच मीन्स कि अगर हमें कुछ भी ऐसा मशीन या कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट हमें स्पेस में भेजना है तो उससे रिलेटेड कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग होनी है, और एग्जैक्टली द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी स्पेस के व्हीकल को, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो इलॉन मस्क की ये प्राइवेट कंपनी विच इज कॉल्ड एज द SpaceX उससे डील करती है. सो we should be very clear about this thing that SpaceX actually है क्या. ये खुद किसी एक मिशन या प्रोजेक्ट का नाम नहीं है. It is the name of this private company which deals in the aeronautics and it is owned by Elon Musk. Now, the news for day is that two NASA astronauts. So what actually NASA is? NASA आप ये समझ लीजिए जैसे इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बस ये इसी का अमेरिकन वर्जन है. ये उनके लिए उनकी एक नेशनल एजेंसी है विच इज द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो this agency which works like the ISRO in India, it works for the America. So इसका भी recently क्या हुआ है कि इसके दो astronauts which they are named as Bob Behnken and Doug Hurley. So they were lifted off in the Dragon spacecraft. तो इस spacecraft का नाम Dragon है. So from prelims point of view, this needs to be kept in mind. A question can be framed कि Dragon spacecraft आजकल news में था. So what actually is it? So we must be knowing that this is one of the spacecrafts which is already actually carried two NASA astronauts. So it will be carrying atop Falcon 9 rockets. So ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, बट इट इज नॉट एज टेक्निकल एज इट रियली अपीयर्स टू बी. सो अटॉप एज इन ऑन द टॉप ऑफ. सो देयर इज दिस रॉकेट कॉल्ड एज द Falcon 9 रॉकेट. तो उसके टॉप पे हमने इसको जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसको लगाया, एज इन जो मतलब SpaceX जो इनकी कंपनी जिन्होंने लगाया था, और इन्होंने इसको यहाँ से फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A ऑफ नासा's Kennedy स्पेस सेंटर इसको लॉन्च किया. सो दिस एक्चुअली इज टू मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, बट हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि
अभी स्पेस एक्स ने अपना जो स्पेस क्राफ्ट है विच इज कॉल्ड एज ड्रैगन, उसको फैल्कन 9 रॉकेट के साथ अटैच करके लॉन्च किया है। सो इसमें तो टू एस्ट्रोनॉट्स विल जॉइन द एक्सपीडिशन 63। ये एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का इस पूरे एक्सपीडिशन का नाम है एक्सपीडिशन 63 क्रू एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो एक्चुअल में जो हम ये बात कर रहे हैं कि स्पेस एक्स का जो एयरक्राफ्ट है वो डॉक हो गया है आईएसएस पे। सो डॉक का मतलब एक तरीके से होता है कि वहां पे जाके वो अटैच हो गया है, वहां पे जाके वो पार्क हो गया है, एज इन वहां पे उसने अपनी पोजिशन ले ली है। सो एट द आईएसएस इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. So before the two, a 3-member crew is already present, namely as Expedition 63 commander and NASA astronaut Chris Cassidy and cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Wagner. इन्होंने जो है इसका ये रशियन स्पेस एजेंसी में हो चुका है ये वाला. Then we are also it becomes the first private company. So ये काम होने के बाद SpaceX जो है it has become the first private company to launch people into orbit after 3 governments, namely US, Russia and चाइना. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज टू बी नोन कि अर्लियर क्या होता था कि हम जो है जो एरियल व्हीकल्स हमारे जाते थे वो अक्सर अनमैन्ड होते थे. अनमैन्ड एज इन कि उनमें कोई भी एस्ट्रोनॉट ऐसा बैठ के नहीं जाता था. जैसे कि फॉर एग्जांपल चंद्रयान का अगर हम इंडिया में एग्जांपल लें तो चंद्रयान 2 जो अभी रिसेंटली था हमारे न्यूज में, तो उसमें वो चांद तक जाने की उसकी कोशिश थी और वो काफी हद तक पहुंच भी गया था, लेकिन वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, एज इन कि उसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं था. बट अब रिसेंटली इंडिया भी जो है, अभी अगर आप न्यूज में देखेंगे तो इंडिया भी अपना कोशिश कर रहा है कि 2022 तक वो 4 अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा इन अ मैन्ड एरियल व्हीकल. सो उस पे भी हमें उसका भी हमें पता होना चाहिए. और उनकी एक्चुअली भी ट्रेनिंग चल रही है इन रशिया. सो रशिया का जो स्पेस सेंटर है वहां पे हम उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं. सो दैट इज एक्चुअली इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया. बट अगर हम बात करें इसकी, तो स्पेस एक्स जो है वो पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है. लेकिन क्योंकि ये काम तो पहले भी हुआ है, यूएस में खुद हुआ है, रशिया में भी हुआ है, चाइना में भी हुआ है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी ने अब तक ये काम नहीं किया था, which now SpaceX has done. So this is very important. तो ये चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी होंगी from prelims point of view. Now next, this is a very important topic for the day as racial tension in the United States. So ये more or less it can be an important issue from the mains exam point of view. सो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि एक अफ्रीकन अमेरिकन, क्योंकि हमें पता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो बहुत टाइम से उनकी एक हिस्ट्री रही है अमेरिका में ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड. तो अक्सर क्या था कि हमें अगर आपको ध्यान हो तो हम पहले भी पढ़ते थे कि जो है जब ओबामा वहां पे एज प्रेसिडेंट अभी जब चुने गए थे कुछ टाइम पहले, बिफोर ट्रम्प एक्चुअली, तो उस टाइम पे बहुत बूम था इस बात का बिकॉज ही वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो एक्चुअली में क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन वर दोज पीपल हु एक्चुअली बिलोंग्ड टू अफ्रीका, बट देन क्योंकि उनकी बहुत सारी पीढ़ियां जो थी वो दे बिलोंग्ड टू अफ्रीका एंड उनकी बहुत सारी पीढ़ियां जो थी वो अमेरिका में ही सेटल थी. सो दे एक्चुअली बिकेम सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, बट रेशियली एज इन उनकी जो रेस थी वो अफ्रीकन थी. सो उस टाइम पे बहुत एक ह्यू एंड क्राई हुआ करता था इस बात को that they were blacks. Yes, they were considered as black people. So बहुत ज्यादा उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था हिस्ट्री में. सो अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री को, अमेरिका की सिविल हिस्ट्री को अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम डिटेल में देखें, सो विल गेट टू नो दैट एट द टाइम ऑफ 1800s, तो मतलब जो बिगनिंग थी 19th सेंचुरी की, उस टाइम पे जो वहाँ की सिविल वॉर थी वो बस एंड पे आई थी. तो सिविल वॉर एक्चुअली क्या होती है, दिस एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू गिव an idea of the history of United States so that we can put this article for the day to relevance. तो क्या हुआ कि जो वहाँ की 19th सेंचुरी की जब बिगिनिंग हुई तो उस टाइम पे फॉर्चुनेटली और बहुत स्ट्रगल के बाद जो वहाँ की सिविल वॉर थी वो खत्म हुई, ऑलमोस्ट खत्म हुई जिसको हम कह सकते हैं. तो सिविल वॉर एक्चुअली क्या होती है, इट इज काइंड ऑफ अ वॉर, इट कुड बी लाइक वॉर ऑफ आइडियाज ऑल्सो एक्चुअली. सो इट वाज अ वॉर अमंगस्ट द सिविलियंस ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो सिविल वॉर इसलिए कहते हैं. तो जरूरी नहीं है कि उसमें प्रॉपर टैंक्स और पूरे आर्मी का, मिलिट्री का भी यूज हो, दैट इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली. बट ये है कि हाँ, कई सारे वायलेंट एक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें. तो इट इज मोर और लेस दी फाइट और द वॉर ऑफ आइडियाज, रेस, और मे बी इट कुड बी रिलीजन ऑल्सो. सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी टू.
सो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में सिविल वॉर जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे तैसे बहुत ही जिसको हम कहेंगे एंडेवर्स के बाद खत्म हुई। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि देखा गया कि जो वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन थे और जिनको वो एक्चुअली कॉमनली ब्लैक्स के नाम से जानते थे, तो उनके खिलाफ तब भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। चाहे आप उसको रिलीजियस फील्ड में ले लो, एजुकेशन की फील्ड में ले लो, पॉलिटिक्स की फील्ड में ले लो, या फिर नॉर्मल ह्यूमन एंड सिविल राइट्स के फील्ड में ले लो, तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उसमें अभी रिसेंटली, और वो डिस्क्रिमिनेशन अब तो क्या था, क्योंकि अब ह्यूमन राइट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक कह सकते हैं कि सप्रेस कर दिया गया था। बट अब रिसेंटली ये फिर से जो है पॉपअप होके आया, एज इन कि हुआ क्या कि एक रिसेंटली एक अफ्रीकन अमेरिकन था जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। तो रिसेंटली so there is this place called Minneapolis in Minnesota, and it is in the United States. So he was actually killed in the police custody. So इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इसको लेकर हो गए। सो दिस कैन बी कंपेयर्ड, अगर हम इसको इंडियन सिचुएशन से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो इंडिया में भी जैसे अभी भी इंडिया में भी कास्ट इज स्टिल एन इशू, बहुत बड़ा इशू है। तो अभी भी क्या होता है कि अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी या इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है किसी दलित के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस अगर हम देखें तो क्या होता है कि वो न्यूज जो होती है वो, मतलब जिसको हम कहेंगे पर से, वो पहले से ही इतनी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, बिकॉज एक पूरी हिस्ट्री रही है एक एक्सप्लॉइटेशन की दलित्स के खिलाफ इंडिया में भी। तो सिमिलरली क्या हुआ कि जब अभी इस अफ्रीकन अमेरिकन की डेथ हुई, एज इन ही वाज किल्ड इन द पुलिस स्टेशन इन मिनीसोटा, सो इसके खिलाफ, इस किलिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट अमेरिका में होने लग गए। तो इसमें अभी क्या देखने मिला कि जो वहां के अभी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, सो उन्होंने एक इसके अगेंस्ट स्टैंड ले लिया, अगेंस्ट एज इन नॉट अगेंस्ट द किलिंग ऑफ दैट माइनॉरिटी, दैट अफ्रीकन अमेरिकन, बट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज हु वर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दिस किलिंग। सो उन्होंने एक बहुत, जिसको कहेंगे कि बहुत ही नैरो व्यू के साथ उन्होंने कई सारे ट्वीट्स कर दिए, विच एक्चुअली एक लीडर होने के नाते, अब चाहे आपका पर्सनल कुछ भी बिलीफ हो, आप कुछ भी पर्सनली बिलीव करते हो, बट इफ यू आर अ लीडर ऑफ एनी कंट्री, सो यू शुड नॉट बी, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू behave this way, and there is a certain thought process which you are expected to deal with. So अभी क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने एक ट्वीट के थ्रू जो प्रोटेस्टर्स थे उनको एक तरीके से कह सकते हैं कॉशन नोट, एक धमकी जिसको आप कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली अ धमकी, विच वी कैन से, नॉट एग्जैक्टली अ थ्रेट टू से, बट एक कॉशन नोट उन्होंने ट्विटर के थ्रू दिया। और उन्होंने जो है काफी, जिसको कह सकते हैं, ये आप देख भी सकते हैं, दिस इज दैट स्मॉल स्क्रीनशॉट ऑफ दैट Twitter comment which Donald Trump recently made, and इसमें भी क्या हुआ कि उन्होंने एक, कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन उन्होंने इस तरीका क्या किया कि जिसमें वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक उस पूरे मैटर को समझने के बजाय he behaved in this way which was definitely not encouraged by the people. और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि उन्होंने जो मेक्सिकन्स थे ना, एवरीबडी नोज, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अमेरिकन्स हैं, एंड वो भी स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रम्प के पावर में आने के बाद, दे हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ, जिसको हम कहेंगे ना, एक सेंस ऑफ हेटरेड भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट अ सेंस ऑफ डाउन लुकिंग टुवर्ड्स द मैक्सिकन्स। क्योंकि क्या होता है कि अमेरिका और मैक्सिको का अगर आप मैप देखें तो एक बहुत इजी फिल्ट्रेशन होता है मैक्सिको का अमेरिका की तरफ। सो बहुत सारे जो क्रिमिनल्स भी होते हैं वो कई तरीके से हाइड करते हुए या किस तरीके से बॉर्डर्स क्रॉस कर जाते हैं, एंड दे एंटर मैक्सिको। एंड मैक्सिको डेफिनेटली, यू नो, इट इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स ड्रग्स एंड एवरीथिंग। फेमस क्या है, उसको बदनाम ज्यादा बोल सकते हैं। तो उस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उनकी एक लाइवलीहुड बिल्कुल भी नहीं थी कभी से भी मैक्सिको के लिए। तो रिसेंटली उन्होंने मैक्सिको के लोगों को भी बोला कि दे आर रेपिस्ट एंड सो। एंड अभी 2017 में भी अभी आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे जो विजिटर्स थे उनको, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थे, वहां के विजिटर्स को उन्होंने बैन कर दिया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है इन दी ट्रेड्स, इन दी थॉट प्रोसेस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, कि वो कुछ इनटॉलरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, मे बी फॉर द मैक्सिकन्स टू से स्पेसिफिकली, एंड नाउ अगेंस्ट द माइनॉरिटीज ऑफ हिज वेरी ओन कंट्री। सो इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि ताकि जो इस तरह का कोई भी मैटर है वो किसी एक लीडर के या किसी प्रेसिडेंट के एक डिस्क्रिप्शन पे ही ना रह जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेजिस्लेटिव तरीके से हम उसको मूव करें, एज इन द अमेरिकन्स शुड मूव इन अ लेजिस्लेटिव मैनर, एंड दे शुड मेक द एप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिमिनेशंस।
तो उन्होंने इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको उन लेजिस्लेशंस में इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कह रहा है कि यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स बाय पुलिस अगेंस्ट माइनॉरिटी। तो इसके खिलाफ, क्योंकि जब कभी कोई माइनॉरिटी का केस पुलिस के पास आता है तो कभी कभी अपनी पर्सनल वेंजियंस को भी पूरा करने के लिए उनके खिलाफ ज्यादा ही फोर्स का यूज कर लेते हैं। सो उसमें उस लेजिस्लेशन में इसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। देन पनिशमेंट फॉर हेट क्राइम्स, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एट बॉर्डर्स। सो ये सारी चीजें जो है उन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में काउंट होनी चाहिए। एंड मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये पॉइंट बता देना चाहती हूँ कि जब हेट क्राइम्स 1920s के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कभी हुए ही नहीं है। उस टाइम पे भी काफी कोशिश की गई थी एंड वी हैड अ फ्यू एक्ट्स इन हैंड, एज इन द अमेरिकन्स हैड अ फ्यू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो काफी हद तक उस टाइम पे अच्छा उन्होंने काम किया, बट नाउ दे आल्सो नीड अ रिफॉर्म। फॉर एग्जांपल उनका नाम था सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1968, हेट क्राइम्स स्टैटिस्टिक्स एक्ट 1990 एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट 2009। सो अगर कभी हमारा मेंस में आप ये आंसर आता है तो हम इसको कोट भी कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो अमेरिका की लेजिस्लेशन में ऑलरेडी थे, बट सिंस उनका आप कह सकते हैं कि रेलेवेंस कम होता जा रहा है और इसलिए जरूरी है कि उनका क्विक रिविजन किया जाए और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हमें देखने को मिले। So that will be all for this. And finally, now moving towards the last article for the day, we have the universal basic income in India. So एक्चुअल में हमें इसके लिए समझना पड़ेगा पहले कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम कहते किसको है, व्हाट एक्चुअली अकाउंट्स टू बी यूबीआई, जिसको शॉर्ट में एक्चुअली हम यूबीआई कहते हैं, व्हिच इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सो नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, अगर कभी इस तरह से हमें देखने मिलता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। सो दिस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू बीइंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसके और भी नाम है, जैसे कि सिर्फ हम उसको बेसिक इनकम भी बोलते हैं, सिटीजन इनकम भी बोलते हैं, सिटीजन बेसिक इनकम भी बोलते हैं, बेसिक इनकम गारंटी भी बोलते हैं, और इस तरह के इसके कुछ सिमिलर नेम्स और भी हैं। सो अगर कहीं पे भी इस तरह का है तो रेफरेंस डायरेक्टली गोज टू द यूबीआई इटसेल्फ। अब ये जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसकी शॉर्ट हम हिस्ट्री बट बहुत शॉर्ट सी हिस्ट्री इसकी हम स्टडी कर लेते हैं। सो एक्चुअली 16th सेंचुरी के टाइम पे देयर वाज दिस फेमस पर्सनालिटी कॉल्ड एज सर थॉमस मोर। सो इन्होंने अपना एक आइडिया ऑफ यूटोपिया दिया था। तो यूटोपिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट डाउन दिस वर्ड कि यूटोपिया है क्या। इट कैन बी कोटेड इनटू सेवरल इंस्टेंसेस, एसेज एंड वेरियस ऑफ योर आंसर्स। सो यूटोपिया एक्चुअली क्या था, ये इनका सर थॉमस मोर की एक विजन थी ऑफ अ यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन एक्चुअली रेफर्स टू द आइडियल थिंग, तो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, विच एक्चुअली अगर हम अभी आज के टाइम में देखें तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू अचीव, मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ लैक्यूना हमेशा रह जाता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ सर थॉमस मोर, यूटोपिया जो था एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पे कोई भी फ्लॉ नहीं होगा, एकदम इक्वालिटी होगी, हर तरीके की इक्वालिटी होगी, चाहे आप जेंडर की इक्वालिटी ले लो, चाहे आप वेजेस की इक्वालिटी ले लो, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, मेन एंड वुमेन विल बी इक्वल, द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इट्स बेस्ट, एंड मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं एक परफेक्ट सिचुएशन जो हम सोच सकते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। तो जब उन्होंने सर थॉमस मोर ने अपनी इस यूटोपिया का कंसेप्ट दिया था, उस टाइम पे ही उन्होंने, अब आप देख सकते हैं इट वाज वे बैक इन 16th सेंचुरी। सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम कोई नया कंसेप्ट नहीं है, या ऐसे जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही कोई कंटेम्प्रेरी जो आज के ही टाइम पे डेवलप हुआ हो कंसेप्ट, ऐसा नहीं है। इट हैज ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट बैक इन द 16th सेंचुरी इटसेल्फ। सो 16th सेंचुरी में उन्होंने जब अपना यूटोपिया कंसेप्ट दिया, तब उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी उस यूटोपिया तक पहुंचने की, उस आइडियल सोसाइटी तक पहुंचने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता बताया, जिसके बिना हम उसको अचीव नहीं कर सकते। सो व्हाट एक्चुअली इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, नाउ वील सी। So it says that it is a model for providing an unconditional fixed amount. So we'll also break it up and try to analyze these terms as well. Unconditional fixed amount to every citizen in the country. So यूनिवर्सल इज विच इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी। जैसे हम कहते हैं कि कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी से द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो अब चाहे कोई आदमी अमेरिका में रहता हो, कोई इंडिया में रहता हो, कोई बांग्लादेश में रहता हो, कोई श्रीलंका में रहता हो, या चाहे इंडिया में ही कोई चाहे कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी में रहता हो, दैट डजंट रियली क्रिएट अ डिफरेंस। द सन नो मैटर व्हाट विल ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट। सो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो अनचेंज्ड होती हैं, जिनके ऊपर किसी और फैक्टर का असर नहीं पड़ता, वो यूनिवर्सल कहलाती हैं। सो यूनिवर्सल इज दिस, इज द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल इज दिस। बेसिक, नाउ द सेकंड टर्म इज बेसिक। तो बेसिक का मतलब है कि मौलिक, जो बिल्कुल बेस पे हो, कि मतलब कम से कम आपका इसमें काम चलेगा, मतलब इससे कम कुछ नहीं। दिस इज द
least, the least minimum that can be worked with. So basic will be that, and income definitely everybody knows कि income क्या है, कोई भी आपकी कमाई का जरिया या कमाई, आपकी कोई भी जो है इनकम, आपके पास कुछ भी जो पैसा आता है, कोई भी आपका फायदा है, तो वो आपका इनकम में काउंट होता है. सो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहता है कि कंट्री के हर सिटीजन को, सो दिस नीड्स टू बी नोटेड दैट कंट्री के हर सिटीजन को एक अनकंडीशनल, एज एन अनकंडीशनल वी ऑलरेडी अंडरस्टूड, यूनिवर्सल जिसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई ना हो, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए. तो एक्चुअल में अगर हम इसको सारी चीजों को और तरफ रख के अगर हम सिर्फ इस कंसेप्ट को देखने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में इट इज क्वाइट ऑफ एन आइडियल कंसेप्ट. क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसके पास भी अपने फंड्स, अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं. तभी जब हमारा बजट डिसाइड होता है, कहीं ना कहीं खींचमतान होती है बजट में, कभी कहीं से जीडीपी हम लोग निकाल के किसी और को अलॉट करने की कोशिश करते, तो वी ऑलरेडी हैव अ क्रंच. मतलब नॉट बेसिकली, अगर हम उसको क्रंच भी ना बोले, पॉजिटिवली बात करने की कोशिश करें, तो स्टिल वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से आप अपने सारे सिटीजन को आप सोचिए, कीपिंग इन माइंड द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कितना हद तक ये पॉसिबल है, ये कंसेप्ट कितना पॉसिबल है, दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड. सो ये कहता है कि कंट्रीज दैट हैव स्टार्टेड टू, हाँ, एंड बट ऑल्सो countries like Kenya, Brazil, Finland and Switzerland, they have already started it as a pilot project. तो अगर हमें ध्यान दें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बिल्कुल पॉलिसीज में इसको एनग्रेव कर दिया है अभी, बट yes, they have tried to bring this concept of UBI into their country. But then again, we should also see that all of these countries have a population way lesser than India. So India के पास population बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर हम ध्यान में रखें और तब हम universal basic income को distribute करने की कोशिश करें, so the things might be different altogether. But ये जो concept है, it is hugely supported by, मतलब ये एक्चुअली क्या है, सपोर्ट साइट करने का एक मेजर रीजन ये होता है ताकि हम जान सकें कि इसकी कितने रेलेवेंस है. सो पीटर डायमंड, ही इज वन ऑफ द इकोनॉमिक्स नोबेल लॉरेट्स, एंड क्रिस्टोफर पिसाराइट्स, एंड टेक लीडर्स लाइक मार्क जकरबर्ग एंड एलॉन मस्क. सो ऑल ऑफ दीज आर स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सो अभी रीजन क्या है कि हमें क्यों चाहिए इस टाइम पे? अभी अगर हम देखें तो कोविड-19 जो अगर हमारा एक्चुअली क्या है कि आजकल हर कंसेप्ट जो है वो इसी के आसपास घूम रहा है, बीट हेल्थ, बीट इकोनॉमी, बीट एजुकेशन, बीट एम्प्लॉयमेंट और बीट एनीथिंग. वो अभी क्या है कि हम उसको कोविड-19 के बिना प्रोबेबली उसको हम डिस्कस कर ही नहीं सकते. सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया हैड ऑलरेडी बीन स्ट्रगलिंग फॉर गिविंग इट्स यूथ द राइट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट वॉज एन इशू. हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो था, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वॉज लाइक नेवर बिफोर. ऐसा कभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं था जितना अभी हमारा चल रहा था इंडिया में. और फर्दर अब जब कोविड-19 का सारा सिनेरियो आ गया है पूरे पिक्चर में, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और बढ़ गई है. तो अभी क्या हुआ है कि ये रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों हमें यूबीआई की जरूरत है. तो ये कहता है कि टेक्नोलॉजीज जैसे कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें क्या हुआ है कि हमें ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है ना वो कम हो गई है. एज इन कि कई जगह पे क्या होता है कि बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो काम इतना कर देती है कि हमें फिजिकल एम्प्लॉयमेंट की, एज इन किसी बंदे की वहां पे एम्प्लॉय करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है. तो जिसकी वजह से क्या था, अपॉर्चुनिटीज पहले ही कम थी और उनमें से जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और उसकी जो और कोइंसाइडिंग टेक्नोलॉजीज है उन्होंने ले ली है. एंड फर्दर क्या हुआ है कि इंडिया में हमारा जो 90% वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब जितने लोग अभी एम्प्लॉयड हैं, जितने लोग अभी काम कर रहे हैं इंडिया में, कुछ किसी ना किसी तरीके की जॉब कर रहे हैं, दे आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर विदाउट मिनिमम वेजेस और सोशल सिक्योरिटी. सो दिस इज अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न. अगर हम यूबीआई को भी साइड हटाते हैं, स्टिल इट विल बी अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि दो सेक्टर्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के जिसको हम कहें, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल. तो एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, इनफॉर्मल सेक्टर में जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना, चाहे आप उनके इनकम की इंफॉर्मेशन ले लो, उनके जॉब के टाइप की इंफॉर्मेशन ले लो, कितने लोग उसमें हैं उसकी इंफॉर्मेशन ले लो, या फिर क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनको जरूरतें हैं, वो किसी भी तरीके से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं होता है. इसीलिए उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से बाहर निकले और कोई छोटी सी दुकान है पान की, आपको क्या लगता है वो कहीं पे अपने आप को रजिस्टर करा के रखते हैं? क्या वो कोई कंपनी फ्रेम करके रखते हैं, फॉर्म करते हैं? नो, नॉट, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसकी खुद की इनकम इतनी कम होती है, इतनी
नॉलेज भी उनको नहीं होती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर में फॉल कर जाते हैं, और इस वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम से, या कह सकते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट की बेनिफिट से, या और भी जो डेवलपमेंट के स्कोप होते हैं उनसे वो पीछे रह जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो सही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती थी वो नहीं होती है। सो कीपिंग इन माइंड ऑल द फैक्टर्स राइट नाउ, लाइक वी कैन हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्टर, देन द कोविड-19, और उसकी वजह से जो लोगों को ऑलरेडी जो रिसेशन टाइप का देखने को मिल रहा है और लोग घरों पे बैठना पड़ रहा है उनको, दे लूजिंग देयर जॉब्स ऑलरेडी, एंड फर्दर 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स बीइंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इस वजह से हमें एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट के स्कीम की, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट के आइडिया की बहुत जरूरत है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट, जब एम्प्लॉयमेंट है नहीं बट पैसे की रिक्वायरमेंट तो परमानेंट है ही है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो एक अच्छा स्टेप हो सकता है। बट येस, अगर हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मेंस में आता है तो वी कैन नॉट बी लाइक राइटिंग द एंटायर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम वन साइड, वी विल ऑल्सो हैव टू सी द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना खुद का रेवेन्यू कट करना पड़ेगा, तभी उसको वो इतना पैसा कलेक्ट कर पाएगी। एंड एज इन रेवेन्यू कट, एज इन की अगर वो इस वक्त रेवेन्यू में 10 रुपए कलेक्ट कर रही है टोटल, तो उस 10 रुपए को उसको 100 चीजों में खर्च भी करना पड़ रहा है। अब उन 100 चीजों के साथ साथ सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी जुड़ जाएगी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उन 10 रुपयों में से वो कैसे कर पाएगी वो सारा काम। बट उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा फाइनली, कि उन 10 रुपयों को उसको मल्टीप्लाई करके कम से कम 50 रुपए करना पड़ेगा, विच एक्चुअली मीन्स कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनका जो टैक्स का परसेंटेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, सो उनके ऊपर भी बर्डन बढ़ जाएगा। तो एक बैलेंस भी क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि नो मैटर व्हाट वी आर इन अ वेलफेयर स्टेट, डेफिनेटली वी आर इन अ वेलफेयर स्टेट, एंड गवर्नमेंट हैज टू मेक एंडेवर्स टू डू समथिंग एंड डू the welfare of the downtrodden people, but still उसका सारा भार जो है वो कुछ उन गिने चुने लोगों पे नहीं आना चाहिए जो पूरे ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहे हैं। So actually में the government has to make efforts to create a beautiful balance between the people who are paying the taxes and the people who need these taxes. So with this we'll be concluding today's session, and this is the question for the day. Which countries have already started a pilot project with universal basic income? So your options are Kenya, Switzerland, Norway, and Finland. So you have to choose the correct option. It could be 1, 2, and 3, 1, 3, and 4, 1, 2, and 4, and or all of the above. So you may please take your time and answer this question. Thank you.